یہ مستقین کے لیے جو غریب لوگ ہیں ان کو ایک آسانی ہوگی. یوٹیلیٹی سٹور پہ بھی سستی چیزیں ملیں گی, چینی بھی سستی ملے گی, اور یہ بھی ان کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو کیش ہے ان کو ملے گا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ان کی ضروریات ہے وہ پوری کر سکے. تو یہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جب لانچ کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارا پروگرام شروع ہو جائے گا. بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ. بہت شکریہ رانا تنویر حسین صاحب, وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار. رمضان شریف کی اسپرٹ کو اجاگر کرتے ہوئے اس پروگرام کا اجرا کیا جا رہا ہے. وزارت اطلاعات و نشریات نے اس وزیر اعظم رمضان پیکج کے حوالے سے ایک تعارفی ویڈیو مرتب کی ہے. وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. وزیر اعظم کا عزم, رمضان کی برکات سے کوئی نہ محروم رہے. پاکستان کے چاروں صوبوں پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان, گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کے مستحقین کے لیے وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر 40 لاکھ مستحق خاندانوں کے لیے رمضان ریلیف پیکج کو 7 ارب سے بڑھا کر 20 ارب روپے کر دیا گیا ہے, جو گزشتہ سال کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے, جس سے مستفید ہوں گے 2 کروڑ سے زائد مستحق افراد. ملیں گے فی خاندان 5,000 روپے. یہ پیکج صرف ان خاندانوں کے لیے ہے جو وفاقی اور صوبائی حکومت کے کسی اور امدادی پروگرام کا حصہ نہیں ہے. انتظار کی زحمت کے بغیر 9999 سے معلوماتی SMS ملنے کے بعد امدادی رقم کی ڈیجیٹل والیٹ میں شفاف منتقلی. رمضان کی برکت, سب کی شرکت. بہت اچھی ٹیگ لائن ہے, رمضان کی برکت, سب کی شرکت. اور اب جناب وزیر اعظم پاکستان, میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ڈیجیٹل والیٹ کا اجرا سر یہاں سے ہوگا. خواتین و حضرات, پرائم منسٹر صاحب افتتاح کرنے جا رہے ہیں, اجرا کرنے جا رہے ہیں. جناب وزیر اعظم 40 لاکھ خاندانوں کو جو 2 کروڑ نفوس پر مشتمل ہیں 20 ارب روپے اس پروگرام کے تحت رمضان شریف کے پہلے عشرے میں دے دیے جائیں گے. جناب وزیر اعظم خطاب کے لیے تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم رانا تنویر حسین صاحب, جناب احسن اقبال صاحب, جناب عطا اللہ تارڑ صاحب, محترمہ شہزہ فاطمہ صاحبہ, علی پرویز صاحب اور گورنر, اسٹیٹ بینک چیئرمین نادرا اور بسپ کے عامر علی احمد صاحب اور درجہ بدرجہ تمام سرکاری افسران جنہوں نے آج اس انتہائی نیک کام کے لیے شبانہ روز محنت کی. اور رمضان کی اب آمد ہے, اس حوالے سے روزے داروں کے لیے 40 لاکھ گھرانے, تقریباً 2 کروڑ ہمارے پاکستانی افراد کو, بھائیوں کو, بہنوں کو رمضان شریف میں ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے 5,000 روپے فی خاندان کا جو انتظام کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس رمضان میں پچھلے سال کے مقابلے میں مہنگائی دم توڑ چکی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو مستحق خاندان ہیں, جو سفید پوش ہیں مگر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, ان کی مدد, ان کی خدمت رمضان میں اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم کا باعث بنے گی. اس سال تقریباً 20 ارب روپے کی خطی رقم اس پیکج کے لیے مختص کی گئی ہے، جس کے ذریعے
40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। पिछले साल ये रकम 7 अरब रुपए थी और इस साल ये 20 अरब रुपए रखे गए हैं वफाक के हवाले से, और इसका फैलाव पूरा पाकिस्तान होगा। तमाम सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, तमाम इन इलाक़ों में मुस्तहिक़ अफराद के लिए ये रकूम डिजिटल निज़ाम के ज़रिए तकसीम की जाएंगी। इसके लिए मैं इन तमाम हज़रात का और मुतल्लिका जो सेक्रेटरीज़ हैं और दूसरे जो इदारे हैं, नादरा है, बिस्प का मैंने अभी ज़िक्र किया, और फिर वो तमाम टेक कंपनीज़ जिन्होंने इस निज़ाम को काबिल अमल बनाने में अपनी टेक्निकल सपोर्ट मुहैया की है, मैं उन सब का फ़र्दन और इज्तिमान उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आई बिलीव देयर आर फॉरेन पार्टनर्स also international partners also sitting here. I'd like to also thank them for their cooperation and partnership in this very noble cause, and I'm very grateful to them for their time, their commitment, and of course their valuable contribution. और बात यहाँ पर मुकम्मल नहीं होगी अगर मैं मिनिस्टर फाइनेंस और चौधरी इमदाद बसाल का शुक्रिया अदा करूं। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले मदरसा हकानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है। दहशतगर्दी के नतीजे में जो बॉम्ब अटैक हुआ है उसमें मौलाना हामिदुल हक साहब वो शहीद हो गए और कुछ और पाकिस्तानी वहाँ शहीद हुए हैं। मौलाना हामिदुल हक साहब ये मरहूम मौलाना समीउल हक के साहबजादे थे और ये मैं समझता हूँ कि नहायत एक नेक लोग थे और इस जामिया ये बड़ा एक ही कदीम और बहुत मशहूर जामिया जहाँ पर इस्लामी तालीमात और दूसरे अलूम वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये वाक़या इंतहाई दिलखराश वाक़या है और पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि करोड़ों लोग अफसरदा हैं और हम सब मिलकर इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। मुझे यकीन है कि केपी हुकूमत फिलफौर जो कातिल हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनका फिलफौर उनका अहाता करेगी उनको और गिरफ़्तार करके उनको कारवा की सज़ा उनको दी जाएगी, क्योंकि दहशतगर्दी जिसका 2018 में मुकम्मल ख़ात्मा हो चुका था और ये आसानी से इसका ख़ात्मा नहीं हुआ था। 80,000 पाकिस्तानियों ने शहादत का जाम नोश किया था। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने, अफसरों ने, उनके बच्चों ने, आम शहरी ने, केपी में, सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, माओं ने, जवानों ने, डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने, ट्रेडर्स ने, ताजरों ने और सियासतदानों ने कुर्बानियाँ दी। तब जाकर 2018 में इसका मुकम्मल तौर पर कलाकमा हुआ। बदकिस्मती से हालिया सालों में इसने दोबारा सर उठाया है। उसकी वजूहात हम सब जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। लेकिन इंशाअल्लाह रमज़ान की बरकत से और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से और मुसल्लह अफवाज की अजीम कुर्बानियों के तुफ़ैल इंशाअल्लाह फिर इस दहशतगर्दी का कलाकमा किया जाएगा और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इस नासूर को दोबारा
दफन नहीं किया जाता और एक ऐसी कब्र खोदी जाएगी जिससे इसका साथ दोबारा निकलना मुमकिन नहीं होगा। मैं वापस आता हूँ आज के इस मौजू के ऊपर। तो मैं गवर्नर स्टेट बैंक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका इस हवाले से भी शुक्रिया। देखा होगा कि हमारे जो महसूलात हैं जो वसूल करने हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने अरबों खरबों रुपए, जो कि ट्राइब्यूनल्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर कई सौ अरब रुपए कई सालों से स्टे ऑर्डर्स हैं और उनके फैसले नहीं हुए। इसी तरीके से जो करप्शन के ज़रिए गरीब कौम का पैसा जो लूटा जा रहा है, उसको हम अल्लाह ताला के फजल करम से आनी हाथ से उसको हम डील कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब 2022-23 में रुपया और डॉलर की कदर जो थी उसमें बहुत फ़र्क आ गया था और डॉलर जो था वो आसमानों से बातें कर रहा था। रुपया तकरीबन 350 तक पहुंच गया था। तो बैंकों ने विंडफॉल प्रॉफिट किया था। विंडफॉल हमने कानून बनाया था, जो हमारी 16 महीने की गवर्नमेंट थी, कि जिन्होंने विंडफॉल प्रॉफिट बनाया उनके ऊपर विंडफॉल टैक्स के नाम से लगाया, मगर वो कोर्टों में गए और स्टे ऑर्डर ले लिए। अब हमारी हुकूमत दोबारा आई तो मैंने अपने तमाम साथियों के साथ बड़ी अरक रेज़ी के साथ हमने एक नया निज़ाम बनाया, जिससे कि हमने इंशाअल्लाह कि ये जो लीगल जो चैलेंजेस हैं, कोर्टों में जो केस जो स्टे ऑर्डर का शिकार हैं साल से, उससे हमने इस साल 500 अरब रुपए कम से कम हमने हदफ मुकर्रर किया, हम लेके आएंगे। उसकी शुरुआत इस तरह हुई कि चंद दिन पहले सिंध हाई कोर्ट ने जज साहब ने फैसला दिया कि वहाँ पर जो केसेस थे स्टे ऑर्डर इसके विंडफॉल प्रॉफिट के हवाले से, उन्होंने स्टे खारिज किया। 23 अरब रुपया की वो रकम थी। स्टेट बैंक के गवर्नर ने, इनको आप तहसीन दीजिएगा कि एक ही दिन में वो पैसा लेके वापस बैंकों में लेके आए और ख़जाने में डाला है। और ये शुरुआत है, इट इज़ जस्ट द बिगनिंग। और इंशाअल्लाह इसमें चेयरमैन FBI की भी बड़ी इसमें काविशें हैं और बाकी तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि हमारी यूटिलिटी स्टोर से अपना जान छूटी। इसको हमने प्राइवेटाइज़ करना है और ये कितना शफाफ काम है। ना लाइनें लगेंगी, ना अखबारों में गिले शिकवे आएंगे कि जनाब बहुत धूप थी और लंबी लाइन थी, चावल नहीं थे, शुगर नहीं थी, ID कार्ड उन्होंने कहा दोबारा लेके आएँ। उन्होंने कहा कि जनाब आपके पास, आपको तो ID कार्ड जाली है। इन तमाम मुसीबतों से जान छूट गई और ये इंतहाई शफाफ, इंतहाई प्रोएक्टिव निज़ाम जो है वो मार्ज़ वजूद में आया है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आप सबका ममनून हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपने पाकिस्तानी कौम का एक एक पाई इस निज़ाम के, ये 20 अरब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से जो डिजिटल वॉलेट जो हैं उनमें जाएगा। और कहीं शायबा नहीं है कि एक धेले की भी करप्शन का। अगर आप यूटिलिटी स्टोर को ले लें तो मैं समझता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बदतरीन करप्शन थी, बदतरीन। और गरीब आवाम का इस पाकिस्तान की दौलत को लूटा जा रहा था, जिस तरह और कई इदारे जिनको हम बंद करने जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का जितना भी हम शुक्र अदा करें वो कम है कि एक शफाफ तरीके से 20 अरब रुपया पाकिस्तान के चारों कोनों में तकसीम होगा। हकदारों को निज़ाम बन चुका है, इसकी राउंड द क्लॉक इसकी सुपरविज़न होगी। जनाब मिनिस्टर साहब ने ख़ुद कहा कि पहले अशरे में इंशाअल्लाह ये रकम जो है 20 अरब रुपए ये तकसीम हो जाएगी और पूरी तरह उसकी मॉनिटरिंग होगी। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी इन खदमात को कबूल फरमाए और पाकिस्तान को अजीम बनाए और रमज़ान की बरकत से पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोज़गारी और दुख और तकालीफ का ख़ात्मा हो और पाकिस्तान सही मानों में अक़वाम आलम में अपना मकाम हासिल करे। शुक्रिया बहुत बहुत। पाकिस्तान पाइंदाबाद।
रमज़ान पैकेज की इफ्तिताही तकरीब जारी थी। रमज़ान पैकेज की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि वफाकी वज़रा, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन नादरा और दीगर का मशकूर हूँ और 40 लाख घरानों को 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान का इंतज़ाम किया गया है और पाकिस्तान में तमाम मुस्तहिक अफराद को डिजिटल निज़ाम के ज़रिए ये रकम तकसीम की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल ये रकम 7 अरब थी और इस साल ये रकम 20 अरब ये रकम मुख्तस की गई है और रमज़ान पैकेज में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई दम तोड़ चुकी है और पिछले दौर में बदतरीन करप्शन की गई और कई ऐसे इदारे हैं जिनको हम बंद करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने धमाके में मौलाना हामिदुल हक के शहीद पर उन्होंने जो ये भी कहा कि नौशहरा धमाके में पूरी कौम इस वक्त अफसरदा है। जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, साहब जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, मुहतरमा शहज़ा फातिमा साहिबा, अली परवेज़ साहब और गवर्नर स्टेट बैंक चेयरमैन नादरा और बिस्प के आमिर अली अहमद साहब और दर्जा बदर्जा तमाम सरकारी अफसरान जिन्होंने आज इस इंतहाई नेक काम के लिए शबाना रोज़ मेहनत की और रमज़ान की अब आमद है, उस हवाले से रोज़ेदारों के लिए 40 लाख घराने तकरीबन 2 करोड़ हमारे पाकिस्तानी अफराद को, भाइयों को, बहनों को रमज़ान शरीफ में डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान का जो इंतज़ाम किया गया है ताकि वो अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इस रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं, जो सफ़ेद पोश हैं मगर वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनकी मदद, उनकी खिदमत रमज़ान में अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम का बायस बनेगी। इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। पिछले साल ये रकम 7 अरब रुपए थी और इस साल ये 20 अरब रुपए रखे गए हैं वफाक के हवाले से और इसका फैलाव पूरा पाकिस्तान होगा। तमाम सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, तमाम इन इलाक़ों में मुस्तहिक अफराद के लिए ये रकूम डिजिटल निज़ाम के ज़रिए तकसीम की जाएंगी। इसके लिए मैं इन तमाम हज़रात का और मुतल्लिका जो सेक्रेटरीज़ हैं और दूसरे जो इदारे हैं, नादरा है, बिस्प का मैंने अभी ज़िक्र किया, और फिर वो तमाम टेक कंपनीज़ जिन्होंने इस निज़ाम को काबिल अमल बनाने में अपनी टेक्निकल सपोर्ट मुहैया की है, मैं उन सब का फ़र्दन और इज्तिमान
उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. I believe there are our foreign partners, also international partners, also sitting here. I'd like to also thank them for their cooperation and partnership in this very noble cause, and I'm very grateful to them for their time, their commitment, and of course their valuable contribution. और बात यहाँ पर मुकम्मल नहीं होगी अगर मैं मिनिस्टर फाइनेंस और चौधरी इमदाद बसाल का शुक्रिया अदा करूँ. मैं बात आगे बढ़ाने से पहले मदरसा हकानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है. दहशत गर्दी के नतीजे में जो बॉम्ब अटैक हुआ है उसमें मौलाना हामिद अल हक साहब वो शहीद हो गए और कुछ और पाकिस्तानी वहाँ शहीद हुए हैं. मौलाना हामिद अल हक साहब ये मरहूम मौलाना समीउल हक के साहबजादे थे और ये मैं समझता हूँ कि नहायत एक नेक लोग थे. और इस जामिया ये बड़ा एक ही कदीम और बहुत मशहूर जामिया जहाँ पर इस्लामी तालीमात और दूसरे अलूम वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं. मैं समझता हूँ कि ये वाक़या इंतहाई दिलखराश वाक़या है और पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि करोड़ों लोग अफसरदा हैं और हम सब मिलकर इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं. मुझे यकीन है कि केपी हुकूमत फिलफौर जो कातिल हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनका फिलफौर उनका अहाता करेगी उनको और गिरफ़्तार करके उनको करार वाक़ई सज़ा उनको दी जाएगी. क्योंकि दहशतगर्दी जिसका 2018 में मुकम्मल ख़ात्मा हो चुका था और ये आसानी से इसका ख़ात्मा नहीं हुआ था. 80,000 पाकिस्तानियों ने शहादत का जाम नोश किया था. अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने, अफसरों ने, उनके बच्चों ने, आम शहरी ने, केपी में, सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, माओ ने, जवानों ने, डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने, ट्रेडर्स ने, ताजरों ने और सियासतदानों ने कुर्बानियाँ दी. तब जाकर 2018 में इसका मुकम्मल तौर पर कला कमा हुआ. बदकिस्मती से हालिया सालों में इसने दोबारा सर उठाया है. उसकी वजूहात हम सब जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा. लेकिन इंशाअल्लाह रमज़ान की बरकत से और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से और मुसल्लह अफवाज की अजीम कुर्बानियों के तुफ़ैल इंशाअल्लाह फिर इस दहशतगर्दी का कला कमा किया जाएगा और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इस नासूर को दोबारा दफन नहीं किया जाता और एक ऐसी कब्र खोदी जाएगी जिससे इसका साथ दोबारा निकलना मुमकिन नहीं होगा. मैं वापस आता हूँ आज के इस मौजू के ऊपर. तो मैं गवर्नर स्टेट बैंक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ. इनका इस हवाले से भी शुक्रिया. देखा होगा कि हमारे जो महसूलात हैं जो वसूल करने हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने अरबों खरबों रुपए, जो कि ट्राइब्यूनल्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर कई सौ अरब रुपए कई सालों से स्टे ऑर्डर्स हैं और उनके फैसले नहीं हुए. इसी तरीके से जो करप्शन के ज़रिए गरीब कौम का पैसा जो लूटा जा रहा है उसको हम अल्लाह ताला के फजल करम से आनी हाथ से उसको हम डील कर रहे हैं. आपको याद होगा कि जब 2022-23 में रुपया और डॉलर की कदर जो थी उसमें बहुत फ़र्क आ गया था और डॉलर जो था वो आसमानों से बातें कर रहा था. रुपया तकरीबन 350 तक पहुंच गया था. तो बैंकों ने विंडफॉल प्रॉफिट किया था. विंडफॉल हमने कानून बनाया था जो हमारी 16 महीने की गवर्नमेंट थी
کہ جنہوں نے ونڈ فال پروفٹ بنایا ان کے اوپر ونڈ فال ٹیکس کے نام سے لگایا، مگر وہ کورٹوں میں گئے اور اسٹے آرڈر لے لیے۔ اب ہماری حکومت دوبارہ آئی تو میں نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ بڑی ارک ریزی کے ساتھ ہم نے ایک نیا نظام بنایا، جس سے کہ ہم نے انشاءاللہ کہ یہ جو لیگل جو چیلنجز ہیں، کورٹوں میں جو کیس جو اسٹے آرڈر کا شکار ہیں سالہ سال سے، اس سے ہم نے اس سال 500 ارب روپے کم از کم ہم نے ہدف مقرر کیا ہم لے کے آئیں گے۔ اس کی شروعات اس طرح ہوئی کہ چند دن پہلے سندھ ہائی کورٹ نے جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ وہاں پر جو کیسز تھے اسٹے آرڈر اس کے ونڈ فال پروفٹ کے حوالے سے، انہوں نے اسٹے خارج کیا۔ 23 ارب روپے کی وہ رقم تھی۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے ان کو آپ تحسین دیجیے گا کہ ایک ہی دن میں وہ پیسہ لے کے واپس بینکوں میں لے کے آئے اور خزانے میں ڈالا ہے، اور یہ شروعات ہیں، اٹ از جسٹ دا بگننگ۔ اور انشاءاللہ اس میں چیئرمین FBR کی بھی بڑی اس میں کاوشیں اور باقی تمام انسٹیٹیوشنز ہیں۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری یوٹیلیٹی اسٹور سے اپنا جان چھوٹی، اس کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے، اور یہ کتنا شفاف کام ہے، نہ لائنیں لگیں گی، نہ اخباروں میں گلے شکوے آئیں گے کہ جناب بہت دھوپ تھی اور لمبی لائن تھی، چاول نہیں تھے، شوگر نہیں تھی، آئی ڈی کارڈ انہوں نے کہا دوبارہ لے کے آئیں، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے پاس آپ کو تو آئی ڈی کارڈ جعلی ہے۔ ان تمام مصیبتوں سے جان چھوٹ گئی، اور یہ انتہائی شفاف، انتہائی پرویکٹیو نظام جو ہے وہ مارز وجود میں آیا ہے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کا ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستانی قوم کا ایک ایک پائی اس نظام کے، یہ 20 ارب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ڈیجیٹل والیٹ جو ہیں ان میں جائے گا، اور کہیں شائبہ نہیں ہے کہ ایک دھیلے کی بھی کرپشن کا۔ اگر آپ یوٹیلیٹی اسٹور کو لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، بدترین کرپشن تھی، بدترین، اور غریب عوام کا اس پاکستان کی دولت کو لوٹا جا رہا تھا، جس طرح اور کئی ادارے جن کو ہم بند کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ایک شفاف طریقے سے 20 ارب روپیہ پاکستان کے چاروں کونوں میں تقسیم ہوگا، حقداروں کو نظام بن چکا ہے، اس کی راؤنڈ دا کلاک اس کی سپرویژن ہوگی۔ جناب منسٹر صاحب نے خود کہا کہ پہلے اشرے میں انشاءاللہ یہ رقم جو ہے 20 ارب روپے یہ تقسیم ہو جائے گی، اور پوری طرح اس کی مانیٹرنگ ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور پاکستان کو عظیم بنائے، اور رمضان کی برکت سے پاکستان میں غربت، بے روزگاری اور دکھ اور تکالیف کا خاتمہ ہو، اور پاکستان صحیح معنوں میں اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے۔ شکریہ بہت بہت۔ پاکستان پائندہ باد۔ رمضان پیکج کی افتتاحی تقریب جاری تھی۔ رمضان پیکج کی افتتاحی تقریب سے وزیراعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ وفاقی وزراء، گورنر اسٹیٹ بینک چیئرمین نادرا اور دیگر کا مشکور ہوں، اور 40 لاکھ گھرانوں کو 5,000 روپے فی خاندان کا انتظام کیا گیا ہے، اور پاکستان میں تمام مستحق افراد کو ڈیجیٹل نظام کے ذریعے یہ رقم تقسیم کی جائے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے سال یہ رقم 7 ارب تھی، اور اس سال یہ رقم 20 ارب یہ رقم مختص کی گئی ہے، اور رمضان پیکج میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال صاحب جناب عطا اللہ تارڑ صاحب، محترمہ شہزہ فاطمہ صاحبہ، علی پرویز صاحب، اور گورنر اسٹیٹ بینک چیئرمین نادرا، اور بسپ کے عامر علی احمد صاحب، اور درجہ بدرجہ تمام سرکاری افسران جنہوں نے آج اس انتہائی نیک کام کے لیے شبانہ روز محنت کی۔ اور رمضان کی اب آمد ہے، اس حوالے سے
रोज़ेदारों के लिए 40 लाख घराने तकरीबन 2 करोड़ हमारे पाकिस्तानी अफराद को, भाइयों को, बहनों को रमज़ान शरीफ में डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान का जो इंतज़ाम किया गया है ताकि वो अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इस रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं, जो सफ़ेद पोश हैं मगर वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनकी मदद, उनकी खिदमत रमज़ान में अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम का बायस बनेगी। इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। पिछले साल ये रकम 7 अरब रुपए थी और इस साल ये 20 अरब रुपए रखे गए हैं वफाक के हवाले से, और इसका फैलाव पूरा पाकिस्तान होगा। तमाम सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, तमाम इन इलाक़ों में मुस्तहिक अफराद के लिए ये रकूम डिजिटल निज़ाम के ज़रिए तकसीम की जाएंगी। इसके लिए मैं इन तमाम हज़रात का और मुतल्लिका जो सेक्रेटरीज़ हैं और दूसरे जो इदारे हैं, नादरा है, बिस्प का मैंने अभी ज़िक्र किया, और फिर वो तमाम टेक कंपनीज़ जिन्होंने इस निज़ाम को काबिल अमल बनाने में अपनी टेक्निकल सपोर्ट मुहैया की है, मैं उन सब का फ़र्दन और इज्तिमान उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। I believe there are foreign partners, also international partners also sitting here. I'd like to also thank them for their cooperation and partnership in this very noble cause, and I'm very grateful to them for their time, their commitment, and of course their valuable contribution. और बात यहाँ पर मुकम्मल नहीं होगी अगर मैं मिनिस्टर फाइनेंस और चौधरी इमदाद बसाल का शुक्रिया अदा करूँ। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले मदरसा हकानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है। दहशत गर्दी के नतीजे में जो बॉम्ब अटैक हुआ है उसमें मौलाना हामिदुल हक साहब वो शहीद हो गए और कुछ और पाकिस्तानी वहाँ शहीद हुए हैं। मौलाना हामिदुल हक साहब ये मरहूम मौलाना समीउल हक के साहबजादे थे और ये मैं समझता हूँ कि नहायत एक नेक लोग थे और इस जामिया ये बड़ा एक ही कदीम और बहुत मशहूर जामिया जहाँ पर इस्लामी तालीमात और दूसरे अलूम वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये वाक़या इंतहाई दिलखराश वाक़या है और पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि करोड़ों लोग अफसरदा हैं और हम सब मिलकर इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। मुझे यकीन है कि केपी हुकूमत फिलफौर जो
कातिल हैं, जो दहशत गर्द हैं, उनका पुलफौर उनका अहाता करेगी उनको और गिरफ़्तार करके उनको करार वाक़ई सज़ा उनको दी जाएगी। क्योंकि दहशत गर्दी जिसका 2018 में मुकम्मल ख़ात्मा हो चुका था और ये आसानी से इसका ख़ात्मा नहीं हुआ था। 80,000 पाकिस्तानियों ने शहादत का जाम नोश किया था। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने, अफसरों ने, उनके बच्चों ने, आम शहरी ने, केपी में, सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, माओं ने, जवानों ने, डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने, ट्रेडर्स ने, ताजरों ने और सियासतदानों ने कुर्बानियाँ दी। तब जाकर 2018 में इसका मुकम्मल तौर पर कला कमा हुआ। बदकिस्मती से हालिया सालों में इसने दोबारा सर उठाया है। उसकी वजूहात हम सब जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। लेकिन इंशाअल्लाह रमज़ान की बरकत से और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से और मुसल्लह अफवाज की अजीम कुर्बानियों के तुफ़ैल इंशाअल्लाह फिर इस दहशत गर्दी का कला कमा किया जाएगा और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इस नासूर को दोबारा दफन नहीं किया जाता और एक ऐसी कब्र खोदी जाएगी जिससे इसका सर दोबारा निकलना मुमकिन नहीं होगा। मैं वापस आता हूँ आज के इस मौजू के ऊपर। तो मैं गवर्नर स्टेट बैंक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका इस हवाले से भी शुक्रिया। देखा होगा कि हमारे जो महसूलात हैं जो वसूल करने हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने अरबों खरबों रुपए, जो कि ट्राइब्यूनल्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर कई सौ अरब रुपए कई सालों से